Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to CrackX. So, we are doing Polity series of M. Lakshmikant, 7th edition, and today we are going to start with Chapter 4, Silent Features of the Constitution. So, without wasting any much time, let's jump to the topic. So, Chapter 4 is all about, studying. We are going to study the details of the Constitution, that is, what are the features of the Constitution, because we have already studied what are other factors of the Constitution, like what is constitutionalism, what is the meaning of the Constitution, and whatever the Constitution is all about. The only thing left is to study about the feature, and in today's chapter we are going to do that. That is, we are going to study the silent features of our Indian Constitution in detail. So, let's start with that. So, the Indian Constitution is very unique and it has several silent features. There are many, amendments that are related to it. Okay. So, over a period of time, the silent features of our Indian Constitution have changed drastically because of some amendments that happened, like the 7th Amendment in 1956, 42nd Amendment in 1976, and 44th and 78 and 73rd and 74 related to the, Panchayati Raj system and municipalities, 97th related to the cooperative societies, and 101st amendments. So these are some amendments that have actually influenced the features of our Constitution in the due period. दैट इज़ इनकी वजह से काफ़ी हद तक हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर था वो इन्फ्लुएंस होकर अब काफ़ी चेंज हुआ है. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस इन दिस चैप्टर इन डिटेल. एंड दैट 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द मिनी पार्लियामेंट, बिकॉज इसके थ्रू ना काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे. लाइक आप कह सकते हो कि हर एक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. बट इसके बहुत सारे ऐसे जो अमेंडमेंट्स थे जो पास्ड आउट हुए थे आफ्टर सम जुडिशियल रिव्यूज़, आफ्टर लाइक द केशवानंद भारती केस व्हेन इन 1973 इट गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्ट्रिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था, इसके बहुत सारे फीचर्स को मतलब रिपील किया गया. इसके बहुत सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू जो प्रोविजंस हुए थे उनको रिपील किया गया इन द 44th, बेसिकली इन 44th अमेंडमेंट एक्ट में रिपील किया गया, बिकॉज वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं कर रहे थे. ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए एक अलग से हमारा चैप्टर है. सो जब हम डिटेल में बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है उसे कवर करेंगे इन दैट चैप्टर ओनली. यहाँ पे बस आपको समझना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सम provisions of the 42nd Amendment Acts got repealed in the 44th, but there were so many changes that are still there that was happened in the 42nd Amendment Act, and that has drastically changed the features of our Constitution that was originally given in the Constitution. So the first feature of the Constitution is that it is very lengthiest written Constitution. ठीक है, तो we know कि Constitution is divided into written and unwritten, and American one is the written Constitution and British Constitution is the unwritten. In the previous chapter we have already know the difference between the written and unwritten Constitution. So हमारा जो Constitution is very lengthiest written Constitution of the world है. ठीक है, एक written Constitution क्या होता है? A Constitution which is a Constitution which is in the form of a book, a document or a series of document, right? तो हमारा एक kind of book है, हमारा Constitution written in a kind of book, and it is a lengthiest written Constitution of the world. Then this is one feature, and originally 1949 जब हमें हमारे पास जो Constitution था उस टाइम हमारे पास एक preamble था, 385 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एंड 8 शेड्यूल्स थे. तो प्रेजेंटली अभी हमारे पास अब इतने सारे पीरियड के बाद, इतने सारे अमेंडमेंट्स के बाद, वी हैव 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. ओके, सो बहुत सारे अमेंडमेंट्स 1951 से लेकर टिल डेट इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसने करीबन 20 आर्टिकल्स को रिपील किया है, एंड पार्ट 7 भी जिसमें हमारा रिपील हो गया था. लेकिन नाउ राइट नाउ
there is no provision in Part 7. It is totally repealed from our constitution, but it is still there. The Part 7, it is still mentioned, but it has no effect at present. And it deleted about 20 articles and added about 95 articles with 4 parts. Like 4 parts have also been added, like 4A, 9A, 9B, and then 14A. So we'll know कि ये सारे parts हैं क्या पूरे tabular form में at last of the chapter. It is very important. The tables of this chapter are very important that are given at last. So 4A is related to fundamental duties, and 9A to the Panchayati Raj, 9B to the municipal. So we'll do that in the later table when we'll be reaching the tables, and we'll do that. Then there are 4 schedules, that is 9, 10, 11 and 12 that has been added till date, and no other constitution in the world has so many articles and schedules. So our constitution is the biggest one, and it is the only constitution that is having so much of articles and schedules. The parts, important articles, schedules of the Constitution of India are mentioned in the tables, and these tables are really very important. So we will be watching it out at last of the chapter. Then 4 factors have contributed to elephantine size of our constitution, and they are that, see, why our constitution is so large? Because there are some factors behind it, okay? Those factors are geographical factors, that is the vastness and vastness of the country and its diversity. We are having such a diverse population with such diverse ideas, religion, regions, languages. There's so much of diversity. That is why, it is a need for a constitution that is so much so precise for each and every, section of the society ki it must be suitable for each and every citizen. Like हर citizen को वो acceptable हो, ऐसा constitution बनाना is itself a challenge. तो उस challenge को पूरा करने के लिए you need some special provisions, some additional provisions. That is why our constitution has such a large articles, so much of articles and schedules. Then historical factors has also influenced, that is the Government of India Act of 1935. So it was already very bulky, and we have our structure of the constitution is totally adopted from the Act of 1935. So this is also a reason. Then single constitution for both center and the state. So we are kind of a country who practice federalism, but in a manner that the nature of our country is like a unitary country. That is, no state or any territory is permitted to cede from it or is individually independent. So we act as a whole. We are as a whole. So it's like we are having a single constitution for both the center and the states. So it is not that the state is having their own constitution or own judiciary or own provisions for something. It is just one single constitution that is containing all the provisions that is there for the center, that is there for the country and for the state. So that is why also कि इतना बड़ा हो गया हमारा constitution. Then dominance of legal luminaries in the constituent assembly. ठीक है, जो legal luminaries हैं हमारे constituent assembly के, उनका बहुत हमारा constituent assembly काफ़ी ज़्यादा dominant था ना उन legal person से, advocate से and judiciary background के लोगों से. That is why उनके dominance के वजह से भी काफ़ी influence पड़ा हमारे constitution में, and that is why there is so much of detail given for each and every article, even though it is precise, but the details have been given in a way so that interpretation could be easier. That is why it has also contributed in the vastness of our constitution. And constitution not only contain the fundamental principles of governance but also detailed administrative provisions and those matters in which other modern democratic countries have been left to the ordinary legislature. तो मतलब कहने का ये पूरे पैराग्राफ का कहने का ये मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड में प्रोविजंस को दे रखा है, इसने उन प्रोविजंस तक को ऐड कर रखे हैं जो बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो कंट्रीज़ उन प्रोविजंस को अपने लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश करती है, जो एक एक लॉ एंड ऑर्डर बनता है इन द पार्लियामेंट और इन अ लेजिस्लेटिव बॉडी. तो उसके थ्रू वो पॉलिटिकल कन्वेंशंस एंड ये सब के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो कंट्रीज़ उन प्रोविजंस को लागू करती है अपने कंट्री में. तो हमारे यहाँ ये सारे प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए हैं.
इसके लिए अलग से कोई लॉ नहीं बनाना होता है हमें. That is why it is also containing those provisions. That is why it has contributed to the worstness of the constitution. Then because it was enjoying a special status by the virtue of Article 370. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, एंड दैट इज़ वाई इट वाज हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि इसके पास यही एक ऐसा एक्सेप्शन स्टेट था जिसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, एंड इट वाज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 2019. तो इसके थ्रू अबॉलिश हुआ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था. आर्टिकल 370 रिपील हुआ है इसके थ्रू by the order of 2019, and this supersede the earlier order. तो ये किस ऑर्डर से था? ये जो जम्मू एंड कश्मीर के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, दिस वाज अंडर द ऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, एंड दिस गॉट रिपील्ड बाय द ऑर्डर ऑफ 2019. ठीक है, एंड दिस 2019 फर्दर एक्सटेंडेड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो लागू होगा जम्मू एंड कश्मीर में. जैसे पूरे कंट्री में, पूरे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ देयर, इसके प्रोविजंस लागू होते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर का अब खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. अब जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा जम्मू एंड कश्मीर का. और इसके अलावा द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 2019, इसने घोषित किया कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में बदला जाए. दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ओके, सो नाउ सो दूसरा फीचर है हमारा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है वो वेरियस सोर्सेज से इन्फ्लुएंस्ड है. दैट इज़ बहुत सारी कंट्रीज, हमने पहले ही देखा था कि 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला गया था और उनके प्रोविजंस को अडॉप्ट करके ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो बहुत सारे वेरियस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड है. एंड B.R. अम्बेडकर ये क्लेम करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. मतलब लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, each and every country's constitution has been ransacked in order to make the constitution of India. तो हमें पता ही है कि स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्फ्लुएंस है. जो फिलोसफिकल पार्ट है, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs आर फ्रॉम द अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली. दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द DPSP प्रोविजंस यानी कि DPSP रखने का आइडिया इट इज़ फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. देन द पॉलिटिकल पार्ट, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल प्रोविजंस हैं, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो इन चीज़ों को लार्जली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, बिकॉज दे आर हैविंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड वहाँ पे ऐसे चीज़ें चलती हैं. दैट इज़ द कैबिनेट गवर्नमेंट होता है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रिलेशनशिप जैसा उनके पास है वैसा ही काफ़ी हद तक, बिल्कुल डिट्टो तो नहीं, बट काफ़ी हद तक हमने वो सारा प्रोविज़न ड्रॉ किया है, आइडियाज़ ड्रॉ किए हैं फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. तो बहुत सारे और भी कंट्रीज़ है, दैट इज़ द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान. सो इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल्दो 60 कंट्रीज़ आर देयर, बट ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फ्लुएंस होने में. एंड देयर इज़ अ टेबल ऑल्सो गिवन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, एंड इन मेंस आंसर राइटिंग इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट, सो विल डू दैट. So obviously the most profound influence is from the Government of India Act of 1935, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो बिल्कुल डिट्टो उतारे गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 80 to 70% a Government of India Act of 1935 only. जैसे कि फेडरल स्कीम्स, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो ये सारे 1935 के दिए हुए हैं. एंड
more than half of the provisions of Constitution are identical or bear a close resemblance to Act of 1935, that, as I said right now. So the features of provision of Constitution that has been borrowed from various sources are mentioned in Table 4.4, which is very important, and we'll do that at last. We'll definitely do that at last. Now, blend of rigidity and flexibility. So our Constitution is blend of rigidity and flexibility. I had also, made you understand in the previous chapter कि rigidity क्या होता है and flexibility क्या होता है. तो rigidity means simply कि वो if you want to make some changes in the laws of the Constitution, अगर आप Constitution के laws को change करना चाहते हो, you cannot do that like an ordinary law. You have to have a special provision for that. ठीक है, एक special provision होगा which will be little complex, it should not be very easy to change the laws of the Constitution in a rigid Constitution, and for that a special provision or is a special procedure is given there in order to make it, make the process of changing the laws of the Constitution a complex process, right? और flexible में वही इस चीज़ का बिल्कुल उल्टा कि जैसे ऑर्डिनरी लॉज बहुत ही आसानी से पास हो जाता है, वैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉज को भी बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो. अमेंडमेंट्स को लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ पास किया जा सकता है, लाइक अ सिंपल में जो हमारे यहाँ जैसे सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ऑर्डिनरी लॉज पास होते हैं, वैसे ही अगर हम कहें कि अगर हमारा इंडिया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो लॉज होंगे, जो प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी सिंपल मेजॉरिटी की तरह पास हो जाएंगे जैसे ऑर्डिनरी लॉ होता है. कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं होगा. बट द एक्चुअल रियलिटी इज़ कि हमारा इंडिया बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉलो करता है. दैट इज़ इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल. इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 368, देयर इज़ एन आर्टिकल विच इज़ आर्टिकल 368. वन सेकेंड. या Article 368, which is containing some provisions that require a very special procedure in order to change the laws of the Constitution. अगर आप उन provisions को हाथ लगा रहे हो, उनको change कर रहे हो जो Article 368 में दिए हैं, तो आपको एक special procedure that is the special majority of the state चाहिए. आपको special majority चाहिए होती है, as well as कुछ प्रोविजंस में आपको रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी चाहिए होता है अलॉन्ग विद द स्पेशल मेजॉरिटी. दैट इज़ आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ अपने कंट्रीज़ के आधे स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट चाहिए होता है ऑन दैट प्रोविज़न टू बी चेंज्ड. और फ्लेक्सिबल मीन्स वो आर्टिकल्स जो या वो प्रोविजंस जो 368 के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी में आते हैं. तो वो प्रोविजंस आप बिल्कुल वैसे चेंज कर सकते हो जैसे ऑर्डिनरी लॉज को चेंज किया जाता है. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं दे दूँ तो सिटीजनशिप का प्रोविज़न जो है वो बिल्कुल वैसे चेंज हो सकता है जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ को किया जाता है, ठीक है. अगर आप आर्टिकल 368 में किसी प्रोविज़न का एग्जांपल लो तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो दीज आर सम प्रोविजंस दैट नीड्स वेरी स्पेशल मेजॉरिटी. जैसे हमारे शेड्यूल 7 में there are separate subjects for the union and for the state. तो अगर आप schedule 7 में कोई amendment लाते हो तो for that you have to perform a special majority along with the ratification of state procedure to make that changes because it is following a kind of federal structure. आप एक federal structure को हाथ लगा रहे हो तो आपको state का consent चाहिए. तो वो सब आर्टिकल 368 में mention होते हैं. तो just for an understanding I have given you an example. Obviously there's a separate chapter about it, so we'll be doing it in those chapters, right? तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ भी है कुछ प्रोविजंस जो अमेंड हो सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी. तो आप ये बिल्कुल पढ़ लेना एकदम. ये यहाँ पे बस दिया है कि स्पेशल मेजॉरिटी एक्चुअली कहते हैं कि इसको इट इज़ लाइक अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, जैसे 2 हाउस होते हैं ना, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो हर एक हाउस से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं. ठीक है, उन दोनों से चाहिए एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस. तो ये जब होता है तब जाके ये स्पेशल मेजॉरिटी कहलाता है. इसके 2/3 हो गए प्रेजेंट एंड वोटिंग एज वेल एज टोटल मेजॉरिटी. लाइक अगर अगर टोटल मेंबरशिप है आपका 245, तो ये 245 का टोटल मेजॉरिटी, इट डजेंट मैटर कि कितने प्रेजेंट है या कितने वोट कर रहे हैं, आपको
each house present and voting and a majority of total membership of each house. यानी इस house का total membership का majority चाहिए और इस house के total membership का majority चाहिए, एंड जब दोनों में ये मिलेगा तब जाके वो कहलाता है अ स्पेशल मेजॉरिटी. ठीक है. एंड जो दूसरा टाइप था जो फेडरल स्ट्रक्चर को जिसमें स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है फेडरल स्ट्रक्चर को अगर आप हाथ लगा रहे हो तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, ये 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज़ देयर, वो जब रैटिफिकेशन करेंगे, रैटिफाई करेंगे, वो जब अपने कंसेंट देंगे तब जाकर आप किसी फेडरल स्ट्रक्चर के लॉज को चेंज कर सकते हो. ठीक है. और बाकी जो भी 368 के अंडर नहीं आते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं. ठीक है. ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जैसे एक ऑर्डिनरी लॉ पास होता है. सो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज. तो हमारा फोर्थ फीचर इज़ लाइक हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता तो है कि देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड देयर इज़ अ सेपरेट लेजिस्लेचर for state also to make their laws and orders on the specific lists that are given to them. जैसे एक स्टेट लिस्ट दिया है, उन स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट को लॉ बनाने का पूरा हक है. लेकिन उसके साथ साथ देयर इज सम यूनिटरी बायस, यानी कि जो पावर है वो बिल्कुल इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कि यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे स्टेट है एंड यहाँ पे बिल्कुल इक्वल पावर. ये हल्का सा इधर बेंड है. ठीक है. कि यूनियन को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया. दैट इज़ व्हेन यू से यू विल स्टडी इन द स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली कि जो यूनियन है उसके पास बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पावर्स है, उसके पास मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिशन है. एंड ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन पावर्स टू द स्टेट ऑल्सो, बट कहीं ना कहीं यूनियन के पास ज़्यादा कंट्रोल है ओवर द स्टेट्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कि फेडरल सिस्टम तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बट इट इज़ लिटिल मच बेंडेड टूवर्ड्स यूनियन. ठीक है. तो ये आप ऐसे बस एक बार रीड कर लो. दैट इज़ द सिंपल थिंग दैट आई टोल्ड यू राइट नाउ. ठीक है. इसलिए मैं लाइन बाय लाइन नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. आपके पास आपको बस यही देखना है कि या जो आपको कॉन्सेप्ट से फीचर्स के वो समझना है, वो मैंने आपको समझा दिया कि फेडरल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, बट थोड़ा सा बेंडिंग. इट्स लाइक यूनियन हैज़ मोर पावर दैन द स्टेट. जहाँ पे बात आएगी कि प्रेफरेंस किसे दिया जाए, स्टेट को या यूनियन को, तो ऑलवेज यूनियन विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस. राइट. दिस इज़ व्हाट इट इज़. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि केसी वेयर ने कहा है कि इट इज़ अ क्वासी फेडरल, कि इट सीम्स लाइक फेडरल बट इट इज़ नॉट एक्चुअली फेडरल. इट इज़ द यूनियन विच इज़ अबव द स्टेट. एंड आप अगर एक कंपैरिजन देखो तो वी हैव यहाँ पे मैं कंपैरिजन आपको करा देती हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वी हैव अ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड. ठीक है. And there is an Indian constitution that we are having, and the basic difference is that कि American constitution totally federalism follow करता है. ठीक है. ये अपने constitution में ये बता कर रखा है कि we are the American constitution में ये provision है कि they are the federal of states. ठीक है. द स्टेट्स फेडरेशन है स्टेट्स का. अमेरिका इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट. दैट इज़ कि स्टेट के पास अपनी इंडिपेंडेंस है, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स के पास. वो उनके पास अपनी खुद की जुडिशरी है. ठीक है. वो खुद के लॉज खुद ही बनाते हैं. जो भी लॉज है वो है सब कुछ वो अपना खुद करेंगे. एंड दैट इज़ वाई द हेड ऑफ द फेडरेशन ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट. तो जहाँ पे आपको फेडरेशन दिखेगा वहाँ पे हमेशा आपको हेड जो दिखेगा वो हमेशा एक प्रेसिडेंट होगा. राइट. बट जहाँ पर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम देखते हो जहाँ पे आपको हेड, ठीक है, हेड आपको प्राइम मिनिस्टर मिलता है, वहाँ पे हमेशा एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होगा. दैट इज़ वो लाइक अ ब्रिटिश थोड़ा सा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड होगा. दैट इज़
कि फेडरेशन तो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इज लाइक वी आर हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, बट in our constitution in the article 1 it is given that we are not a federation, we are the union of states. ठीक है, तो ये अपने आप में कहता है कि स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो लाइक जब मन चाहे सीड कर दे, यानी मतलब जब मन चाहे वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित नहीं कर सकती है, वो एक यूनियन में है. दैट इज दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री इंडिया. ठीक है, एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट में अगर स्टेट चाहे तो वो अपनी सहमति से एक फेडरेशन में है, अगर जब चाहे वो स्टेट सीड कर सकती है, लाइक वो जब चाहे इस अमेरिकन फेडरेशन से खुद को बाहर कर सकती है, अपना एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना सकती है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकती है. बट ऐसा कुछ भी प्रोविज़न हमारे कंट्री में नहीं है. द स्टेट्स हैज़ टू बी यूनाइटेड विद द इंडिया एंड यूनियन हैज़ गिवन ऑल द पावर फॉर दैट. अगर कोई भी बाउंड्री से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, यू विल बी स्टडिंग अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, कोई भी बाउंड्री से रिलेटेड होते हैं या कुछ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होता है या जो भी होता है, दैट इज़ ऑल अंडर द यूनियन. उसमें स्टेट का कोई भी डिस्क्रिशन नहीं होता है, ना ही उनके कंसेंट्स लिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जिस भी स्टेट को आप चाहो, जैसे यूनियन टेरिटरीज में बदल सकते हो आप, जिस भी स्टेट को चाहो, वो सारे पावर्स यूनियन के पास है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी से कि क्या अंतर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. दैट इज़ देयर हेड इज़ अ प्रेसिडेंट, दे हैव अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, we have head as prime minister, and we are having a union of states where union is more powerful than state, although there is a federal structure being followed ki union of states mein power distributed hai, but the main power, the central power which is responsible to maintain uniformity in the country. ठीक है, कोई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखनी है कंट्री में, डिफेंस हो गया जैसे. ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमेशा यूनियन के ही हाथों में होंगे. ओके, लेट्स मूव. So then fifth feature is that parliamentary form of government. We are having a parliamentary form of government right now. In the table you also saw, जो मैंने अभी बताया कि parliamentary form of government का मतलब क्या होता है. It is like more or less like a British parliament system. But हमारा जो country है वो पूरी तरीके से British parliamentary system को adopt करके नहीं रखी है. हमारी कंट्री में इट्स लाइक इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट आर पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लाइक अ वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आर कैबिनेट इज़ अकाउंटेबल टू द लोकसभा, आर गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल. हाउस ऑफ पीपल इज़ लोकसभा, एंड दैट इज़ वाई द कैबिनेट, which is executive, the responsible government, which is executive. Executive basically means executive is responsible, that is executive is accountable, answerable to whom? Answerable to legislature. ठीक है, that is to the people ultimately. नाउ कुछ फीचर्स हैं पॉइंट वाइज दिए हुए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के. दैट इज़ जो प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होता है. दैट इज़ वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव executives as nominal executives because it is the prime minister who nominates the his cabinet ministers. That is why it's like a nominal executive, although our prime minister are directly elected, so we are having a directly elected head. देन मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है. जिस भी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल किया है पब्लिक का, दे आर गोइंग टू रूल अ कंट्री. एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर होता है. दैट इज एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल, आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, दैट इज देयर इज अ मिनिस्टर्स. ठीक है, और मिनिस्टर्स जो भी होंगे वो ऑलवेज वो मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेचर के. तो you have always you will study in the further chapters ki what are the conditions to hold the office of minister. That is, you have to be
द मेंबर ऑफ ईदर राज्यसभा और लोकसभा, इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ मिनिस्टर, तो अगर आप एक मिनिस्टर बनते हो जो एड एंड एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और जिनकी एडवाइसेस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, तो ऐसा कोई मिनिस्टर बनने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए कोई एक डिपार्टमेंट के को होल्ड करते हैं मिनिस्टर, जो उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए आपको हमेशा मेंबर होना ही पड़ेगा। इधर आप राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए या लोकसभा के, दैट इज़ आपको लेजिस्लेचर में मेंबरशिप चाहिए, तभी आप एक एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर बन सकते हो एज एन एग्जीक्यूटिव। तो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इन द एज पर ऑफ होल कंट्री, एंड व्हेन इट कम्स टू द स्टेट, एक पर्टिकुलर स्टेट का हेड होगा जो चीफ मिनिस्टर होगा। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है, हमेशा लोअर हाउस विल बी डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 year और आफ्टर एवरी फिक्स टर्म दैट इज देयर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का एक फिक्स टर्म है, दैट इज 5 years, और आफ्टर एवरी 5 years वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज आवर लीडर। इफ वी आर नॉट हैप्पी with our present government, we can elect some other party and give them the duty to rule. So it's like that. तो हमेशा डिसोल्यूशन इज गोइंग टू हैपन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। इसका मतलब है कि जनरल इलेक्शंस होंगे, न्यू इलेक्शंस होंगे, एंड people will get the chance to elect new government if they are not satisfied with the previous one. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इवन दो बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न पे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंसेस, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सोवरेन बॉडी, इट इज़ इट डिराइव्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम द पीपल। एंड इंडियन स्टेट के जो इलेक्टेड हेड हैं वो the Indian state has an elected head, that is we are having a prime minister and a president. So president is actually the head of the state, prime minister is actually the head of the government. तो हमारे कंट्री का जो हेड है वो इलेक्टेड है पब्लिक के द्वारा, दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड रिपब्लिक। वाइल जो ब्रिटिश स्टेट के हेड हैं वो मोनार्क हैं, दैट इज़ दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक, द पोजिशन इज़ हेरिडेटरी, ठीक है, किंगशिप है वहाँ पर, एंड पोजीशन इज हेरिडेटरी कि किंग के फैमिली के जो भी होंगे वो जेनेसिस चलता रहेगा, एंड दे विल बी एक्वायरिंग द थ्रोन। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल काफ़ी क्रूशियल होता है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ दे आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है इसे प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। Then sixth feature is at the synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है कि वी आर हैविंग अ जुडिशियल सुप्रेमेसी, दैट इज़ आवर जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। कि मतलब ये जो ऑर्गन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का, कि एक लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा, ये तो इसको अकाउंटेबल है, ठीक है, ये पब्लिक को अकाउंटेबल है, बट दिस जुडिशरी इज़ टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये जो डिस्क्रिशन लेती है अकाउंटेबल नहीं होता है, इन्होंने जो भी फैसला सुना दिया, इनका जो भी फाइनल डिसीजन होता है दैट इज़ बाइंडिंग टू ऑल द कंट्री, ठीक है। अगर इन्होंने कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन किया है प्रोविज़न का, एंड दे से कि ये जो भी लॉ बना है वो जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, जो भी एग्जीक्यूटिव ने लॉ बनाया है, इवन दो इट इज़ पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउस, अगर ये सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड नहीं है, तो द जुडिशरी हैज़ ऑल द पावर टू रिपील दैट प्रोविज़न, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएटेड है, वाइल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास एक सोवरेन पार्लियामेंट है, ठीक है, कि जो वहाँ के पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, खुद में आज़ाद है, लाइक इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पीपल, और अपनी अथॉरिटी ये पीपल के थ्रू डिराइव नहीं करती है, सो इट इज़ लाइक दैट। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ सोवरेन हैविंग अ सोवरेन पार्लियामेंट, वी आर रिस्पॉन्सिबल, द लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल।
एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी आया है, प्रोविज़न लिया गया है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से, दैट इज़ वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, it interprets the laws, it interprets the amendments that are made in the constitution. So it has all the discretion over it, it has all the power over it. That is why ये judiciary supremacy की जो provision है वो कहा जाता है, या मतलब एक्चुअली इट्स अ फैक्ट कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है. ठीक है. तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इट्स लिटिल नैरोअर देन व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएस. ऐसा इसलिए है बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देता है अगेंस्ट ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. सो हमारे पास रूल ऑफ लॉ है. ठीक है. सो जिसका मतलब है कि उस तरीके से चलना, उस प्रोसीजर के थ्रू चलना जो लॉ ने एस्टैब्लिश किया, दैट इज लॉ इज सुप्रीम. ठीक है. एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में बस ये अंतर है कि इसका जो बेसिक मतलब है हम दैट इज कि जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ, दैट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ठीक है. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में बस ये अंतर है कि रूल ऑफ लॉ बस ये चेक करता है कि जो लॉ बनाने के लिए, ठीक है, लॉ को बनाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो एक्चुअली में सही प्रोसीजर फॉलो है या नहीं. कि जो प्रोसीजर फॉलो जहाँ से वो करेंगे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट. सही, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कौन से प्रोसीजर के थ्रू आपको लॉ बनाना है. इफ़ अ पार्लियामेंट और अ लॉ मेकिंग बॉडी has followed that procedure correctly, कि जैसा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखा था उस प्रोसीजर के थ्रू उस लॉ को बनाया गया है, तो दैट लॉ विल बी कॉल्ड एज वैलिड. ठीक है. तो उस लॉ को वैलिड बताया जाएगा. बट डिफरेंस ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कि जो लॉ है वो चेक होता है. ठीक है. इवन दो इट हैज़ फॉलोड द राइट प्रोसीजर. जैसे अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था इसने बिल्कुल फॉलो किया वैसे ही. But law is being checked, not the procedure. Even though the procedure is correct and the law is like arbitrary, ठीक है, law सही नहीं है, it is like doing some harm to people or it is not right, तो the law will not be called as valid. ठीक है. law valid नहीं कहलाएगा. Even though procedure is followed correctly, the law will not be called as valid. Why? Because law is arbitrary. Law has been proved as arbitrary, or law has been proved to not be competent with the welfare of the people. लेकिन रूल ऑफ लॉ में सिर्फ प्रोसीजर देखा जाएगा. तो यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना हो कि कोई लॉ वैलिड है या नहीं, ही विल जस्ट चेक कि हाँ ये लॉ सही नहीं है, ये लॉ ऐसा ऐसा हार्म कर रही है, आर्बिट्ररी है, रीजनेबल रीजन्स पे नहीं है, एंड इट विल डिक्लेयर इट एज इनवैलिड. ठीक है. वैलिड नहीं है, इट्स इनवैलिड. तो रूल ऑफ लॉ में व्हाट विल सुप्रीम कोर्ट जज कि प्रोसीजर जो स्टैब्लिश था कॉन्स्टिट्यूशन में वो फॉलो सही से किया गया है नहीं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर्स को अच्छे से फॉलो किया गया है एंड लॉ इज स्टिल आर्बिट्ररी, ठीक है, मान लीजिए लॉ आर्बिट्ररी है भी बट प्रोसीजर सही से फॉलो हुए हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट को इसे वैलिड कहना पड़ता है. ठीक है. दिस इज़ द वेरी बिग डिफरेंस. ठीक है. अगर आपको रिपील करना है कि आपको पता है ये लॉ आर्बिट्ररी है एंड यू वांट इट टू बिकम इनवैलिड, आपको प्रोसीजर में चेंजेस लाने होंगे थ्रू अमेंडमेंट. ठीक है. तब जाकर आप इस लॉ को आर्बिट्ररी या इनवैलिड घोषित कर पाओगे. अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट हैज़ नो डिस्क्रिशन बिकॉज इफ़ द लॉ हैज़ फॉलोड अ राइट प्रोसीजर, इट इज़ totally following the right procedure, then it has to be called as valid. But यहाँ पे प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है. इवन दो यू आर हैविंग अ राइट प्रोसीजर बीइंग फॉलोड, आपका लॉ अगर दिक्कत दे रहा है, कंट्री के फेवर में नहीं है, तो इट विल बी इनवैलिड, it will be declared invalid. So this is what the basic difference is, which is very important to understand because it's sometimes very confusing to डिफरेंशिएट कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ होता क्या है. तो रूल ऑफ लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होता है. ठीक है.
आर्टिकल 21 में इसका जिक्र है, ठीक है, राइट ऑफ लाइफ में, कि जो भी पर्सन की प्राइवेसी है, राइट ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसे आप छीन नहीं सकते हैं तब तक जब तक कि कोई ऐसा लॉ नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो उसे छीनने को आपको कहता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिया गया है थ्रू ब्रिटिश, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन से लिया गया। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमारे इंडिया में ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चलता है। हमारे यहाँ बस प्रोसीजर को देखा जाता है, ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो द लॉ इज़ वैलिड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट ऑन वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज एंड अनकॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स पावर of judicial review. तो we are having power of judicial review where सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि अगर उसे कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, यानी अगर कोई भी लॉ जो प्रोसीजर को फॉलो सही से नहीं कर रही है या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं उसे फॉलो नहीं करी, तो इट हैज़ अ जुडिशियल रिव्यू कि वो रिव्यू करेगी एंड इट विल कंसिडर कि कोई आर्टिकल या कोई भी जो प्रोविज़न या लॉ पास हुआ है वो एक्चुअली में वैलिड है या इनवैलिड है। पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। और अगर पार्लियामेंट को लगा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट इज इंटरफेयरिंग और वो उसके लॉज को बार बार इनवैलिड कर दे रही है, तो वो जाकर सीधा प्रोसीजर को ही अमेंड कर देगी, ठीक है। और जैसे ही वो प्रोसीजर को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करेगी, द अमेंडमेंट विल हैपन। एंड अगर वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को टच नहीं करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर का एक डॉक्ट्रिन निकला है, ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे लास्ट में तो आपको पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है उस प्रिंसिपल्स को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, आप चाहे जो भी अमेंडमेंट करो। दैट इज़ व्हाट द बेसिक स्ट्रक्चर इज़। तो ये कहीं मेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये कहीं भी ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ है। एंड ये बस यही कहता है कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर को ऐसा लगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी कर रहा है, वो सीधा जाएगा, उस प्रोसीजर को चेंज करेगा एंड दैट लॉ विल अगेन बिकम वैलिड। नाउ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दिस इज द 7th फीचर कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। दैट इज देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट फॉर द होल कंट्री, राइट। हमारे इंडिया में तो ऐसा ही है कि अनलाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन में क्या है कि वहाँ पे हर एक, जैसे मैंने बताया था कि हर एक स्टेट के पास अपना खुद का एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास इंटीग्रेटेड है। पूरी कंट्री में वो जो सुप्रीम कोर्ट जो भी वर्डिक्ट देगी, जो भी स्टेटमेंट देगी, वो पूरे लॉ, पूरे कंट्री पे अप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इंटीग्रेटेड इज मीन्स। एंड इंडिपेंडेंट मीन्स कि इस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एनीथिंग। It is totally independent. It has all discretion to do any judicial review it want, it wills and it will do. ठीक है, ये जो बोलेगी वही पत्थर का लकीर होगा। And if you have problem, go and amend the procedure to nullify the verdicts of the Supreme Court. तो बस यही सब लिखा है यहाँ पे। You can just have a read. और यहाँ पे बस एक एडिशनल चीज़ ये है कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपकी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो वो इंश्योर होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं टू जजेस कि बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना रहे ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का। इसलिए जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको सिक्योरिटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि उनके टेन्योर को कम नहीं किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट। जो टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी टर्म दिया हुआ है, जो भी टेन्योर दिया है, दैट इज़ अभी तो जो एट प्रेजेंट जो टेन्योर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि जो जजेस हैं वो टिल 65 years of age दे कैन बी इन द ऑफिस, दे कैन होल्ड द ऑफिस। तो ये एक सिक्योरिटी है, इससे कम नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट हैज़ नो डिस्क्रिप्शन और नो प्रोविज़न फॉर दैट ओवर इट। एंड फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, ठीक है, जो भी उनके एमोल्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी है, दैट इज़ टोटली फिक्स्ड। पार्लियामेंट उसे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर सकता है।
और जो भी एक्सपेंसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंश्योर करती हैं कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उनका कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े एंड जुडिशरी रिमेन्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे बैन होता है प्रैक्टिस में आफ्टर रिटायरमेंट कि अगर मतलब इन ऑर्डर टू मेक द जज नॉट टू फेवर एनी पर्टिकुलर पार्टी और एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर इनके 65 ईयर ऑफ एज के बाद, या जब भी ये अपने अपने जज के पद को इस्तीफा देते हैं, तो ये इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट और इवन बिफोर दैट। And power to punish for its contempt vested in the Supreme Court, then separation of the judiciary from the executive and so on. ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेट बॉडी, इट इज़ अ वेरी सेपरेट ऑर्गन।